ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 11 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग, मुबैना हमला आवर समेत 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। Our communities are tight-knit. We're spread out across the northern part of the province, but we are a close community-oriented group of BC citizens. ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये उसकी हमाकत होगी। अमेरिकी सदर का इंतबाह। We're now sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. जौहरी हथियारों का हसूल नहीं चाहते, लेकिन मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर का जवाब। इज्जत और आजादी रो बरमقام بیارم. از همان روزی که انقلاب شروع شد در اوایل بحث قومیت‌ها، قبیله‌ها، جناح‌ها، دسته‌ها، کودتاها همه اون بلاها رو که میتونستن سر ایران بیارن. غزہ میں 8,000 انڈونیشین فوجی بھجوانے کی تیاری، جانیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی میں کیا رکاوٹ ہے۔ It could be one brigade, maybe 5,000 to 8,000 personnel, but everything is still under negotiation, not yet final. یہ بھی جانیے بنگلہ دیش کے اردو بولنے والے لوگ اپنی شناخت کے بحران کا شکار کیوں؟ اتنا دکھ بولیں گے اللہ کو صرف، اب بندہ کو بولنے کا دل نہیں کرتا۔ 48 بچر سے ہی ہیں، کون ہم لوگ کو کا کیا ہے بولیے تو۔ چین میں ہوٹل کمروں میں خفیہ کیمروں کا نیٹ ورک بے نقاب، ہزاروں افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بی بی سی نے ایک خفیہ کیمرہ ڈھونڈ نکالا جو ہوٹل میں گیسٹ کی بغیر اجازت کے ان کے لمحات کو لائیو اسٹریم کرتا تھا۔ ٹرمپ پر بحث کے بعد ٹیکساس میں برطانوی خاتون کی ہلاکت، والد نے گولی چلانے کا اعتراف کر لیا۔ A British woman was shot dead by her alcoholic dad while on holiday at his home in Texas. An inquest has heard. مزید یہ بھی جانیے کہ طیارہ ساز کمپنیاں ایشیا کے انتہائی امیر افراد کو جہازوں کے ذریعے کیسے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں، اور یہ بھی جانیے کہ عثمان طارق کی حیرت امریکن ٹیم پر کیسے بھاری پڑ گئی۔ Picks it on the full and that's taken at long off. Ball him, so that pause absolutely worked. This is brilliant from Usman Tariq. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے علاقے ٹمبلر ریچ میں فائرنگ سے 9 افراد ہلاک جبکہ 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں سے 6 افراد کی لاشیں ایک سیکنڈری اسکول سے ملی جبکہ 7واں شخص ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ اس کے علاوہ 2 افراد کی لاشیں اسکول کے قریب ایک گھر سے ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق مبینہ حملہ آور کی لاش بھی اسکول سے ملی ہے۔ اس حملے کے دوران بھیجے گئے الرٹ کے مطابق مبینہ حملہ آور خاتون ہے جس کے بھورے بال ہیں، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت ہو چکی لیکن اس کا نام یا صنف ابھی ظاہر نہیں کی جا رہی۔ پولیس نے اس حملے میں استعمال ہونے والی بندوق اور متاثرہ افراد کی عمریں بھی ابھی ظاہر نہیں کی ہیں۔ اسکول اور گھر میں ہونے والی اموات کے بارے میں بھی ابھی تعلق کا واضح ہونا باقی ہے۔ Our communities are tight-knit. We're spread out across the northern part of the province, but we are a close community-oriented group of BC citizens. We have multiple layers of support coming for our students, for our teachers, for our community of Tumbler Ridge. یہ واقعہ کینیڈا کی تاریخ میں کسی اسکول پر ہونے والا دوسرا مہلک ترین حملہ ہے۔ اس سے قبل سن 1989 میں مونٹریال شہر میں ایک ایسے حملے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں بندوق کے حوالے سے قوانین امریکہ سے زیادہ سخت ہیں جس کی وجہ سے وہاں اس طرح کے حملوں کا امکان کم ہوتا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में ईरान कोई मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो ये ईरान की हमाकत होगी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि एक बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं क्या होता है। We're now sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता साल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बार हमने उनकी जौहरी ताकत खत्म कर दी थी। देखना होगा कि इस बार हम क्या कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो ने वाशिंगटन की इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बातचीत का महवर सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम तक महदूद ना रहे, बल्कि इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में ईरान की प्रॉक्सियों और ईरानी अवाम के साथ हुकूमत का बर्ताव भी इसमें शामिल हो। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात को मुतअद्दिद बार मुस्तरद किया है और कहा है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात में वापसी के लिए तैयार है, बशर्ते कि ये बातचीत बराबरी की बुनियाद पर की जाए। याद रहे कि ईरान में बड़े पैमाने पर कौमी करेंसी की कदर में शदीद कमी, महंगाई में इजाफे और हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। अमरीकी सदर ने इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कहा था कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए, और इस दौरान ये तासुर भी सामने आया था कि ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि उनका मुल्क जौहरी हथियारों का हसूल नहीं चाहता और हम इसकी तस्दीक करने को भी तैयार हैं। ईरानी सदर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता जुमे को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ था। मसूद पेज़ेश्कियान का मजीद कहना था कि यूरोप और अमेरिका ने जो बदएतमादी की दीवार खड़ी कर दी है, इसके बाद इन मुज़ाकरात के मुअस्सर होने का इम्कान है। ईरान ज़्यादा मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएगा। हम पड़ोसी ममालिक से बात कर रहे हैं ताकि खित्ते में अमन कायम रह सके। जब हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ मनसूबाबंदी और जारियत करने का सोच रहा था, पड़ोसी और इस्लामी मुल्क हमसे राब्ते कर रहे थे। उन्होंने अपने बयान में तुर्की, अज़रबैजान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र का शुक्रिया भी अदा किया। इंडोनेशिया ने ऐलान किया कि वो गजा में 8,000 तक फौजी तैनात करने की तैयारी कर रहा है और यूं जंग बंदी के बाद फौज भेजने वाला ये पहला मुल्क बन सकता है। फौजी क़यादत के मुताबिक एहलकारों की तरबियत शुरू हो चुकी है और उनकी तवज्जो तिब्बी इमदाद और इंजीनियरिंग के शोबों पर होगी। तहम ये अभी वाज़ेह नहीं कि तैनाती कब और किस दायरा कार में होगी। Deployed, we are preparing such units. It could be one brigade, maybe 5,000 to 8,000 personnel. But everything is still under negotiation, not yet final. ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ करदा अमन काविश के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF तश्कील देने पर गौर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इस फोर्स को गजा के सरहदी इलाकों को महफूज बनाने, हमास को गैर मुसल्लह करने और इलाके को गैर फौजी बनाने का इख्तियार दे सकती है। इसी के साथ जंग के बाद तामीर नौ और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल अबूरी फ़लस्तीनी हुकूमत की निगरानी भी इसी फोर्स की जिम्मेदारी हो सकती है। तहम ज़मीनी हक़ाइक़ इस मंसूबे की राह में बड़ी रुकावट है। हमास हथियार डालने पर आमादा नहीं, जबकि इसराइली फ़ौज अब भी गजा के तकरीबन आधे से ज़ायद हिस्से पर कंट्रोल रखती है। जंग बंदी के पहले मरहले में अगरचे इसराइली अफवाज सरहदी इलाकों तक पीछे हटी हैं, मगर दूसरे मरहले में मुकम्मल इनखला, तामीर नौ और सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्तफाक अभी बाकी है। हमास को गैर मुसल्लह करने का सवाल सबसे ज़्यादा हसास है। इसराइल इस अमल को यकीनी बनाना चाहता है, जबकि तुर्की जैसे बाज़ ममालिक ISF में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं, जिस पर इसराइल को एतराज़ है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया और दीगर मुस्लिम ममालिक ने वाज़ेह किया है कि वो अमन के क़याम में किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन किसी फरीक के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। सियासी सतह पर भी चैलेंजेस कम नहीं, क्योंकि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि गजा में हमास के बाद हुकूमत किसके पास होगी। तजवीज़ ये है कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक गैर जानिबदार फ़लस्तीनी इंतज़ामिया कायम की जाए। तहम इसराइल को खदशा है कि इससे हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोबारा असर व रसूख
हासिल कर सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर दूसरे मरहले पर पेशरफ्त ना हुई तो जंग बंदी कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया हमास हथियार डालती है और इसराइल अपनी फौजें वापस बुलाने पर आमादा होता है या नहीं। यानी फिलहाल गजा में मुस्तकिल अमन के क़याम की राह सियासी और अस्करी पेचीदगियों से घिरी हुई है। सामीन, बांग्लादेश के इलाके सैयदपुर में 22 कैंप हैं जहां उर्दू बोलने वाली आबादी फैली हुई है। कुछ कैंपों में उर्दू कतबे और रंग बिरंगे झंडे देखे जा सकते हैं जहां इंतखाबी गहमा गहमी नजर आती है, लेकिन यहां के मकीनों के दिलों में कई शिकवे और गहरा गुस्सा भी छुपा है। यहां का वाहिद मसला गुर्बत नहीं बल्कि ये लोग अपनी शनाख्त के बहरान का भी शिकार हैं। तफसील जानिए BBC न्यूज बंगला के तफसीर बाबू की इस रिपोर्ट में। यूनुस कवाल और उनका ग्रुप शाम के वक्त अपनी मौसीकी की मश्क में मसरूफ हैं। शुमाली ज़िला नेल फमारी के इलाके सैदपुर से ताल्लुक़ रखने वाला ये कवाल ग्रुप बुनियादी तौर पर उर्दू बोलने वालों पर मुश्तमिल है। इनके कलाम उर्दू ही में लिखे और गाए जाते हैं। अगर कलाम उर्दू में ना लिखा जाए तो वो असर नहीं रहता। अगर हम इसे अंग्रेजी या बंगला में तर्जमा करके लिखेंगे तो इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो पाएगा और सुर और ताल की वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम इसे उर्दू में लिखते और गाते हैं। ये हमारी मादरी ज़बान है। सैदपुर, रंगपुर और दिनाजपुर में इस फ़न की अपनी सकाफ़त है जो दूसरे इलाकों में नज़र नहीं आती। जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो हमें बंगला ज़बान में कवाली गानी पड़ती है। सैदपुर में 22 कैंप हैं जहां उर्दू बोलने वाली आबादी फैली हुई है। कुछ कैंपों में उर्दू कुतबे और रंग बिरंगे झंडे देखे जा सकते हैं जहां इंतखाबी गहमा गहमी नजर आती है, लेकिन यहाँ के मकीनों के दिल में कई शिकवे और गहरा गुस्सा भी छुपा है। तो इतना दुख बोलेंगे अल्लाह को सिर्फ, अब बंदा को बोलने का दिल नहीं करता। 48 बच्चर से यहाँ है, कौन हम लोग को क्या किया है बोलिए तो? सिर्फ एक घर में मुर्गा मुर्गी का तरह गुजारा कर रहे हैं। मगर यहाँ का वाहिद मसला गुर्बत नहीं बल्कि ये लोग अपनी शिनाख्त के बहरान का भी शिकार हैं। 70 साला मोइन आरा ही की मिसाल ले लें, जो इस छोटे से कमरे में 12 अफराद के साथ रहती हैं। वो 5 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ इंडिया से आई थी। वो खुद बंगला जुबान नहीं जानती मगर उनके बच्चे अब भी बंगला ही बोलते हैं। ना बेटा, हम बंगला उंगला नहीं बुझते, काहेला बोले, बस जो हम बोल रहे हैं वही बोलेंगे। आदि परिचय तो हम जहाँ तक शनाख्त का ताल्लुक है हमें पाकिस्तानी कहकर तंज किया जाता है। हमारे बाप दादा इंडिया से आए थे। भारत থেকে আসছে। इस खित्ते में उर्दू बोलने वालों की आमद तकसीम हिंद 1947 के वक्त हुई थी, लेकिन इन कैंपों में बसने वालों की किस्मत अब तक न बदल सकी। अगरचे सियासी मैदान में बिहारियों को हमेशा अहम वोटर तस्वर किया जाता है, लेकिन इनकी बहाली, तालीम और मादरी जुबान में तालीम के हक से मुतल्लिक वादे कभी वफा न हो सके। हर बार इलेक्शन में हमसे वोट मांगा जाता है और वादे किए जाते हैं कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, मगर इलेक्शन खत्म होते ही कोई पलट कर नहीं आता। सैदपुर के इन कैंपों में रहने वाले लोग बिहारी या उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं। इस हलके में कुल 4.5 लाख रजिस्टर्ड वोट हैं, जिनमें से 60,000 वोटर्स इन कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। ये एक बड़ी तादाद है, लेकिन अहम बात यह है कि ये वोटर्स अमूमन मुत्तहिद होकर इज्तिमाई तौर पर वोट डालते हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत का फैसला करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सियासी जमातें इन कैंपों में भरपूर मुहिम चलाती नजर आ रही हैं। असल इंतखाबी मुकाबला 3 जमातों जातिया पार्टी, जमात इस्लामी और BNP के दरमियान है। इन जमातों के उम्मीदवार न सिर्फ दिन बल्कि रात के औकात में भी डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वोटर्स अब भी मुतमईन नजर नहीं आते। सैयदपुर थाने में उर्दू बोलने वाले वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारा वोट जिस पलड़े में गिरता है वो भारी हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे हक में कोई ठोस फैसला नहीं करता। तो इस बार उर्दू बोलने वालों का वोट किस तरफ जाएगा? मकामी कम्युनिटी रहनुमाओं के मुताबिक उन्होंने अभी तक किसी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि इस बार वो अपने मुतालबात लेकर तमाम जमातों के पास जा रहे हैं और तहरीरी वादे चाहते हैं। সবাই সরকারে ছিল, জাতীয় পার্টি সরকারে ছিল,
জামাতও বিএনপির সাথে সরকারে ছিল। तमाम जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। जातिया पार्टी, जमात इस्लामी और बीएनपी भी 2 बार हुकूमत का हिस्सा रही हैं, लेकिन किसी ने हमारे मसाइल हल नहीं किए। इस बार हमारा वोट सिर्फ उसे मिलेगा जो हमारे मसाइल हल करने का तहरीरी अहद करेगा। যে আমাদের সমস্যা সমাধানে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিবে। उर्दू बोलने वाली ये कम्युनिटी अब महज ज़ुबानी तसल्लियों से छुटकारा चाहती है। इस इलाके में इंतखाबात बहुत सौ के लिए सियासी हिकमत अमली हो सकते हैं, लेकिन बिहारियों के लिए ये अपने हकूक़ के हसूल और बका की एक नई जद्दोजहद है। चीन में एक ऐसे मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है जो मुल्क भर के होटल के कमरों में खुफिया कैमरे नस्ब करके लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस अमल से मुमकिना तौर पर हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। तहकीक के मुताबिक बगैर इजाजत बनाई गई इन वीडियोस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त या शेयर किया जाता था। इन मवाद को अमूमन स्पाई कैम पॉर्न कहा जाता है और चीन में इस हवाले से शिकायत और रिपोर्ट्स में हालिया बरसों के दौरान नुमाया इजाफा देखा गया है। मज़ीद तफसील BBC वर्ल्ड सर्विस की वांग चिंग यांग की इस रिपोर्ट में, जिसे खतीजा आरिफ पेश कर रही हैं। ये वो लम्हा है जब BBC ने एक खुफिया कैमरा ढूंढ निकाला जो होटल में गेस्ट की बगैर इजाज़त के उनके लम्हात को लाइव स्ट्रीम करता था। ये कैमरा एक क्रिमिनल नेटवर्क का है जो टेलीग्राम पर काम कर रहा था। मैं कई महीनों से इसकी लंदन से मॉनिटरिंग कर रही हूँ। ये इतना छोटा सा है। होटल के कमरों में कुर्बत के लम्हात की खुफिया वीडियोस अब चीन भर में इंटरनेट पर फरोख्त हो रही हैं। एमिली और उनका बॉयफ्रेंड एरिक क्रिसमस की छुट्टियों के लिए एक होटल में ठहरे थे। बाद में उन्हें पता चला कि उनके क़याम की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई हैं। मैंने आखिरकार चंद सेकंड देखे, पूरा वीडियो नहीं देख पाई। मेरे लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। BBCI एक ऐसे शख्स की तहकीकात कर रहा है जो स्पाई कैम लाइव पॉर्न स्ट्रीम करके दिखाने वाली वेबसाइट तक एक्सेस बेच रहा था। ऑनलाइन उसे AKA कहा जाता है। हमें मालूम हुआ कि 7 महीनों में इस वेबसाइट पर 54 खुफिया होटल कैमरों की लाइव वीडियोस स्ट्रीम की गई थी। यानी हो सकता है कि हजारों लोगों की खुफिया तौर पर वीडियो स्ट्रीम की गई हो। AKA के VIP ग्रुप में हजारों एडिटेड वीडियोस भी हैं, जिनमें सबसे पुरानी 2017 की है। इस खुफिया रिकॉर्डिंग का असर मुतासरा अफराद के लिए तबाहकुन हो सकता है। एमिली और एरिक अब मुसलसल इस खौफ में रहते हैं कि उन्हें कोई पहचान ही न ले। मुझे लगता है कि इसका नफ्सियाती असर आज भी हमें परेशान किए हुए है। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरी तस्वीर बना रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन एरिक सिर्फ मुतासरा नहीं है, उसे अपनी वीडियो भी ऐसा मवाद ढूंढते हुए मिली। हम जानना चाहते थे कि उसने ये स्पाई कैम पॉर्न क्यों देखी। आम पॉर्न फिल्में बहुत फेक लगती हैं। स्पाई कैम वीडियोस बहुत ज़्यादा हकीकी और असली लगती हैं। उसका कहना है कि अब जब उसे मालूम हुआ है कि बगैर इजाज़त फिल्म बनने का एहसास क्या होता है, तो उसे शर्मिंदगी और जिल्लत का एहसास होता है। एरिक ने अपनी वीडियोस हटवाने के लिए इसे बच्चों के साथ ज़्यादती के तौर पर रिपोर्ट किया ताकि टेलीग्राम मॉडरेटर्स की तवज्जो हासिल कर सकें। जिनसी तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि टेलीग्राम अक्सर इस नौयत की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हर साल ऐसा मवाद हटाने की हमारी शरह कम होती जा रही है। सबसे बड़ा मसला कंटेंट को रिपोर्ट करना है। ये पॉलिसियां ये तय करती हैं कि कंटेंट कैसे शेयर होगा। हमने अपनी तहकीकात टेलीग्राम्स को दिखाई। एक बयान में उनका कहना था कि बगैर इजाज़त पॉर्न मवाद शेयर करना उनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज की खिलाफ वर्जी है और टेलीग्राम मुसलसल ऐसे मवाद पर नज़र रखता है और रोज़ाना लाखों की तादाद में नुकसानदेह मवाद हटाया जाता है। हमने AKA के एजेंट को इस कंटेंट के साथ सामना किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंग्लैंड की काउंटी चेशायर से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला लूसी हैरिसन की टेक्सास के शहर डलास में हलाकत की तहकीकात के दौरान अदालत को बताया गया है कि वाक़े के रोज़ उनकी अपने वालिद से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में शदीद बहस हुई थी।
लूसी को 10 जनवरी को अपने वालिद क्रिस हैरिसन के घर में सीने में गोली लगी थी। अमेरिकी पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर इस वाक़े को मुमकिना कत्ल के तौर पर देखा, ताहम मुल्जिम का कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने नहीं आया था। चेशायर कोरोनर कोर्ट में समाअत के दौरान लूसी के बॉयफ्रेंड सैम लिटरल ने बयान दिया कि उस रोज ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के हवाले से गुफ्तगू के दौरान बाप बेटी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उनके मुताबिक लूसी ने अपने वालिद से एक हसास सवाल किया, जिस पर वो नाराज होकर ऊपर चली गई। अदालत को बताया गया कि कुछ देर बाद जब वो एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे तो लूसी किचन में मौजूद थी। सैम के मुताबिक क्रिस हैरिसन ने उनका हाथ पकड़ा और निचली मंजिल के एक कमरे में ले गए। चंद सेकंड बाद गोली चलने की आवाज आई और लूसी जमीन पर गिरी हुई थी। क्रिस हैरिसन ने तहरीरी बयान में कहा है कि वो और उनकी बेटी बंदूक से मुतल्लिक एक खबर देख रहे थे जब उन्होंने बताया कि उनके पास भी असला है और क्या वो इसे देखना चाहती है। उनके मुताबिक जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तो अचानक गोली चल गई और उन्हें याद नहीं कि आया उनकी उंगली ट्रिगर पर थी या नहीं। तहकीकात के दौरान ये भी सामने आया कि वक़्ए के रोज हैरिसन ने तकरीबन 500 मिलीलीटर शराब पी रखी थी। पुलिस अफसर ने अदालत को बताया कि जाए वक़्ए पर उनसे शराब की बू महसूस हो रही थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में उन्हें उसी दिन शराब खरीदते देखा गया। हैरिसन ने अपने वकला के जरिए जारी बयान में कहा है कि वो अपने अमल के नताइज को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं और इस नुकसान का बोझ जिंदगी भर उठाएंगे। सिंगापुर एयर शो में गल्फ स्ट्रीम का जदीद तरीन G700 निजी जेट तैयारा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बड़ी बेजवी खिड़कियां, कुशादा लिविंग एरिया, बेडरूम और ग्रैंड स्वीट विद शावर जैसी सहूलियात इस बात की अक्कासी करती हैं कि निजी तैयारा साजी की सनत अब एक महदूद मगर निहायत मालदार तबके को हदफ बना रही है, खसूसन एशिया में। एविएशन इंटेलिजेंस कंपनी विंग एक्स के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में निजी तैयारों ने तकरीबन 37 लाख परवाजें की, जो कोरोना से पहले के मुकाबले में 35% ज्यादा है। इसी अरसे में ऐसे अफराद की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ जिनकी मजमूई दौलत $3 करोड़ से ज्यादा है। सनत के माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर फैलते कारोबार और वक्त की बचत की जरूरत निजी जेट्स की मांग बढ़ा रही है। गल्फ स्ट्रीम, डैसो, बम्बार्डियर और एम्ब्रियर जैसी कंपनियां एशिया पैसिफिक खित्ते को तेजी से उभरती हुई मार्केट करार देती हैं। वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया और थाईलैंड में फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। बाज ममालिक में छोटे रनवेज के बाइस बिजनेस जेट्स को इजाफी बरतरी हासिल है, क्योंकि वो इन हवाई अड्डों तक भी रसाई रखते हैं जहां बड़े कमर्शियल तैयारे नहीं जा सकते। तैयारा साज इदारे इस रुझान को मुनाफा बख्श समझते हैं। जहां कमर्शियल एयरलाइंस कम मुनाफे पर काम करती हैं, वहीं निजी जेट्स कम तादाद में मगर बहुत ज्यादा कीमत पर फरोख्त होते हैं और इनकी देखभाल और पुर्जाजात भी मुस्तकिल आमदनी का जरिया बनते हैं। कंपनियों का मौक़िफ़ है कि खरीदार ऐशो इशरत से ज्यादा वक्त की बचत, बराह रास्त सफर और बेहतर कारकर्दगी को तरजीह देते हैं। ताहम इस बढ़ते रुझान पर तनकीद भी हो रही है। नाकदीन के मुताबिक निजी जेट्स कार्बन के ज्यादा अखराज का बाइस बनते हैं। जवाब में कंपनियों का कहना है कि नए मॉडल्स ईंधन की बचत करते हैं और पायदार एविएशन फ्यूल यानी SAF के इस्तेमाल की सलाहियत रखते हैं, अगरचे इस ईंधन की महदूद दस्तियाबी अब भी एक चैलेंज है। दिलचस्प बात यह है कि कमर्शियल एयरलाइंस भी अब ज्यादा मालदार मुसाफरों को मुतवज्जो करने के लिए फर्स्ट और बिजनेस क्लास सहूलियात में सरमायाकारी कर रही हैं। यूं फिजाई सनत में एक वाज़ेह रुझान सामने आ रहा है। कम तादाद मगर ज्यादा अदायगी करने वाले मुसाफरों के लिए ज्यादा आरामदेह और खसूसी सफर का तजर्बा। माहिरीन के मुताबिक जैसे जैसे एशिया में दौलतमंद अफराद की तादाद बढ़ रही है, लग्जरी फिजाई सफर की तलब में भी फिलहाल कमी के आसार नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने कोलंबो में खेले गए T20 मैच में अमेरिका को 190 रन्स का हदफ देकर बाआसानी शिकस्त दे दी है और यूं न सिर्फ गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की हार का इजाला किया बल्कि अपने नेट रन रेट में भी बेहतरी ले आई है। अमेरिका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने 54 रन्स का अच्छा आगाज फराहम किया, ताहम साइम 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने जिम्मेदाराना शराकत कायम की। फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि बाबर आजम ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 190 रन बनाए। जवाब में अमेरिका की जानिब से शुभम रांझा ने 51 और शायान जहांगीर ने
49 रन बनाकर मुजाहमत की कोशिश की, ताहम पाकिस्तान की बॉलिंग ने मैच का रुख संभाले रखा। टीम में शामिल किए गए उस्मान तारिक ने 4 ओवर्स में 27 रन देकर 3 अहम विकेटें हासिल की और अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। उस्मान तारिक की बॉलिंग का असल कमाल सिर्फ गेंद के घूमने में नहीं बल्कि उस लम्हे में पोशीदा है जो वो गेंद फेंकने से जरा पहले तख्लीक करते हैं। क्रीज के बाहर से रन अप लेते हुए वो बल्लेबाज की तवज्जो को मुंतशिर कर देते हैं। नजरें उनका पीछा करती हुई एम्पायर के बाएं कंधे की समत जा ठहरती हैं और ऐन उसी लम्हे वो खुद भी एक लम्हे को रुक जाते हैं। ये तवक्कुफ बज़ाहिर मुख्तसर मगर बल्लेबाज के लिए अजियतनाक होता है। फैसला करने की घड़ी उलझ जाती है और रद्द-ए-अमल की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। क्रिकेट की तारीख में मुनफरिद एक्शन हमेशा बल्लेबाजों के लिए आजमाइश रहा है। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में सुहेल तनवीर ने अपनी रिवायती एक्शन से जयसूर्या को यूं चकमा दिया कि एक मामूली सी गेंद भी विकेट ले उड़ी। उस्मान तारिक उसी रिवायत के जदीद नुमाइंदा दिखाई देते हैं, मगर उनकी खूबी सिर्फ एक्शन तक महदूद नहीं, वो स्पिन की वैरायटी से भी लैस है। वो कभी एक ही गुगली को 2 मुख्तलिफ जावियों से फेंक कर बल्लेबाज की बढ़त को नाकाम बना देते हैं, तो कभी यूं लगता है कि गेंद पिच पर आकर जैसे रुक सी जाती है। रफ्तार की यही तब्दीली बल्लेबाज को शॉट मुकम्मल करने से पहले ही बेयकीनी में मुब्तला कर देती है। यूं उस्मान तारिक सिर्फ गेंद नहीं फेंकते, वो हर डिलीवरी से पहले एक सवाल उठाते हैं और अक्सर इसका जवाब बल्लेबाज के पास नहीं होता। मैच से कबल उस्मान तारिक को सलमान मिर्जा की जगह टीम में शामिल करने का फैसला किया गया था। कोलंबो की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए किया गया ये फैसला मौसर साबित हुआ और पाकिस्तान ने एक तसल्ली बख्श और उम्मीद अफजा फतह अपने नाम की। इस मैच में शादाब खान ने 2 जबकि शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद ने एक विकेट हासिल की। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सरदार अख्तर मैंगल ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से मुतालबात न मानने पर 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीबन 1 साल 5 माह तक अख्तर मैंगल का इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। अख्तर मैंगल गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सूबा बलूचिस्तान के जिला खुजदार के हल्का NA 256 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।